بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے اہم خبریں۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ قوم مہنگائی کے سونامی میں ڈوب گئی۔ نااہل حکمرانوں نے عوام کو بھوک اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کراچی میں جلسے سے اپوزیشن رہنماؤں کا خطاب۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو عوام کے درد کا احساس نہیں، لگتا ہے یہاں مافیاز کی حکومت ہے۔ جلسے سے شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ پی ڈی ایم کا کراچی میں پاور شو۔ پیپلز پارٹی جلسے میں شریک نہ ہوئی۔ جلسے کے لیے 25 فٹ اونچا اور 80 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا۔ جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے لیے 3000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ باغ جناح کے اطراف کی گلیاں اور سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ منتظمین کے مطابق جلسہ گاہ میں 1 لاکھ کرسیاں لگائی گئیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر بدل جائے۔ آئندہ الیکشن میں موقع ملا تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے۔ قائد حزب اختلاف کی کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے مائدین سے ملاقات۔ شہر قائد کے مسائل سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا شہر کے مسائل کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی کی حالت سدھاریں گے۔ ایک جماعت نے 3 سال میں ملک و قوم پر ظلم ڈھایا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اپوزیشن کے خلاف میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں شہباز شریف مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں۔ کئی سال اقتدار میں رہنے والوں کو پہلے کراچی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ میں 13 سال حکومت کرنے والے شہر قائد کو ایک بس تک نہیں دی۔ کراچی کے عوام اب کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ بلاول بھٹو کا خیر پور میں جلسہ۔ حکومت پر کھل کر تنقید۔ کہتے ہیں ہم پر نااہل اور ناجائز حکومت کو مسلط کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت 3 سال کی تباہی کا جشن منا رہی ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کرنے والوں نے لوگوں کی لگن لگائی نوکریاں بھی چھین لیں۔ ہم سلیکٹڈ نہیں کہ عوام کے مسائل کا علم نہ ہو، ہم سلیکٹڈ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حکومت پر تنقید۔ کہا 3 سال میں اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ وفاقی حکومت جشن منا رہی ہے، ہم جشن نہیں منا رہے، عوام کے درمیان موجود ہیں۔ کراچی کے لیے 2000 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ کراچی نے وفاق کو 9000 ارب روپے دیے، پہلے اس کا حساب دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا 11 محکموں سے 25,000 لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ غریب کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ نواز شریف کے ستارے گردش میں ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا اس کا نصیب بھی نواز شریف کی طرح کا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب سے سکڑ کر اندرون پنجاب کی پارٹی بن گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر شہباز گل کی اپوزیشن پر تنقید۔ کہا نواز لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ فضل الرحمان کی سیاسی حیثیت صرف 6 سیٹوں کی ہے، وہ نیشنل پالیسی پر کیا پلان دیں گے؟ عمران خان سودا کرنے والا نہیں، ورنہ فضل الرحمان بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے۔ عمران خان سے جیل جانے کی رسید مل سکتی ہے، کسی کو ڈیل نہیں مل سکتی۔ عسکری قیادت، ملکی داخلی سلامتی اور افغان صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹیوں کے ارکان جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے۔ اراکین کو بدلتی افغان صورتحال اور پاکستان کی پالیسی سے آگاہ کیا جائے گا۔ سینٹ دفاعی کمیٹی کی سربراہی مشاہد حسین سید کریں گے۔ قومی اسمبلی دفاعی کمیٹی کے سربراہ امجد علی خان ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی کمیٹیوں کی ملاقات ہوگی۔ میجر جنرل بابر افتخار بھی بریفنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی چودھری احسن سلیم بریار کے اعزاز میں سپرا فیملی کی طرف سے عشائیہ۔ تقریب میں چودھری سلیم بریار، سینئر بیوروکریٹ طاہر خورشید، چودھری ضیاء، عمران خالد کھرل، چودھری زاہد سلیم باجوہ، سعید بھلی کے علاوہ عزیز وقارب اور سیاسی و سماجی شخصیات اور بیوروکریٹس نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں کی خصوصی پکوانوں سے تواضع۔ چودھری احسن سلیم بریار نے میزبان اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔
कोरोना की दहशत बरकरार, एसओपीज के तलाक का दायरा कार 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। एनसीओसी ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। हफ्ते में 2 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। अयाम का तयन सूबों की सवाबदीद रहेगा। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। सरकारी और निजी दफातर के लिए औकातकार 50% के साथ जारी रहेंगे। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। तालीमी इदारे 50% तादाद के साथ हफ्ते में 3 रोज खुले रहेंगे। एसओपीज पर 13 सितंबर को नजरसानी करेगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान। 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन ना करवाने वालों पर सफर के लिए पाबंदी होगी। 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन को लाने ले जाने वाली गाड़ियों में बगैर वैक्सीन सफर नहीं किया जा सकेगा। 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर शहरियों के बगैर कोरोना वैक्सीन लगवाए सफर करने पर भी पाबंदी होगी। कोरोना की दहशत बरकरार, मजीद 69 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड। एनसीओसी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की तशखीस के लिए 62,918 टेस्ट किए गए। 3,909 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना से हलाकतों की तादाद 25,604 हो गई। मजमूई केसेस 11,52,441 तक जा पहुंचे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में CIA का आखिरी ठिकाना ईगल बेस तबाह कर दिया। बेस को तबाह करने का मकसद खुफिया मालूमात और हसास आलात को तालिबान के हाथ लगने से बचाना था। दस्तावेजात जलाने, हार्ड ड्राइव्स को कुचलने और हसास आलात को नाकारा बनाना जरूरी था। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईगल बेस को अफगानिस्तान में जंग के दौरान काउंटर टेररिज्म तरबियती अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान में ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के एक और हमले का खतरा। दहशतगर्द अगले 24 से 36 घंटे में एक और हमला कर सकते हैं। अमरीकी मिलिट्री कमांडर्स की ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में सूरत हाल बदस्तूर खतरनाक है। दाइश मरासान को ड्रोन का निशाना बनाया गया। ये आखिरी हमला नहीं है। तालिबान का कहना है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को ड्रोन समेत किसी भी किस्म के हमले करने का हक नहीं होगा। ऐसा हुआ तो बाजोरे बाजू रोकेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका को हमले से पहले हमें इत्तला देनी चाहिए थी। यूरोपीय मुमालिक अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बहाल रखें। एक हफ्ते के अंदर पूरी काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। ख़वातीन अरकान के शामिल होने से मुतालिक कुछ कहना कबल वक्त है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजी भी निकलना शुरू हो गए। दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के 3 दरवाजों और मुख्तलिफ हिस्सों की सिक्योरिटी तालिबान के सुपुर्द कर दी गई। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी और मेजर जनरल विलियम टेलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी खदशात अब भी मौजूद हैं। 1,17,000 अफराद को निकाला जा चुका है, जिनमें 5,400 अमरीकी भी शामिल हैं। तालिबान का बदरी 313 और फातेह यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट में पोजीशन संभाल ली। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ी तो सब मुतासिर होंगे। माजी से हम सब को सबक सीखना है, इसको दोहराना नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आ रहा है तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो उसका नुकसान सबको होगा। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। पड़ोसी मुल्क खित्ते में अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया की कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी मुलाजिम अपनी राय या किसी भी किस्म की बयानबाजी नहीं कर सकता। एक या जायद हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की एक और नाअहली। हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान। मालगाड़ी के ऑयल टैंकर के ज्वाइंट खुल गए। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी के ऑयल टैंकर से हजारों लीटर फर्नेस ऑयल बह गया।
रेलवे मुलाजमीन की टैंकर से बहते तेल को रोकने की कोशिश नाकाम। मालगाड़ी कराची से मुल्तान जा रही थी। रेलवे की टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का इम्तहानी सेंटर के बाहर एहतजाज। बरकत मार्केट से कलमा चौक जाने वाली सड़क ब्लॉक। डॉक्टर्स की जानिब से बैरियर्स और खारदार तारें हटाने की कोशिश। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे। 2 डॉक्टर्स बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, मुजाहिरीन का इल्जाम। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालाली में पानी की सतह 5 फीट तक बुलंद। ढोक, काला खान, शुक्रियाल, सादिकाबाद और नदीम कॉलोनी के इलाके मुतासिर। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में भी दाखिल। नालाली में पानी का लेवल कटारियां के मकाम पर 6 फीट जबकि गवालबंडी पुल पर 8 फीट रिकॉर्ड। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कामोकी में वारदात के बाद फरार होते 3 डाकुओं का शहरियों से मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही साथी जख्मी। शहरियों ने मुलजिमों की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं ने पहले मेडिसिन कंपनी की वैन से कैश लूटा। दूसरी वारदात के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। ननकाना साहब के करीब लाहौर जड़ावाला रोड पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मियां बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक होने वालों में कासिम, उसकी अहलिया फातिमा और 8 साला बेटा फैसल शामिल। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर सियासी लीडर एम हमजा इंतकाल कर गए। 92 साला हमजा चंद रोज कबल कोरोना का शिकार हो गए थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल सुबह 9:30 बजे गोजरा के कबूतरा वाले कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। उनके साहबजादे उसामा हमजा पीटीआई के रहनुमा हैं। उन्होंने 2018 में NA 111 से पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी मेडल की उम्मीद टूट गई। पाकिस्तानी एथलीट अनीला इज्जत बेग डिस्क थ्रो के फाइनल राउंड से बाहर। टॉप 10 में जगह बनाने वाली अनीला फाइनल के पहले राउंड में गेम से आउट। अनीला ने डिस्क 19.8 मीटर दूर फेंककर इब्तदाई 10 एथलीट्स में भी जगह ना बना सकी। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।